एक्सपीरियंस लिया है या नहीं लिया और किस टाइप की वर्क में लिया? Good afternoon everyone and welcome to today's Fire Chat presented by Machanex here at Earthon Expo 2025 in Ahmedabad. I am Ankur Sarin and I represent Sona Construction Technologies Private Limited, one of the leading importers of construction equipment, and I am proud to be a client and a partner of Machanex, a platform that is truly redefining how equipment is procured, rented, serviced and also facilitating operator hiring across the country. It's an honor to have this important conversation today, one that sits right at the intersection of business, nation building and innovation. Our theme for today is construction and heavy industry, equipment industry fueling the India story 2047. It couldn't be more timely than this. As we walk towards India's centenary year of independence, infrastructure is the engine and construction equipment is the gear that will drive our ambitions forward. From heavy earth movers to compact cutting and bending machines, it is these equipments that will fuel the economy and move the infrastructure of this industry and this country forward. But before we dive into these themes, I would like to invite our panelists to introduce themselves. I would start from the left. Mr. Nipun, can you introduce yourself for the audience, please? Thank you, Ankurji, for organizing. Thank you for facilitating us. My name is Nipun. I am the founder of Machanex. Machanex is an equipment and operator discovery platform. अगर हम बात करें तो इंडिया में इक्विपमेंट को लेके बहुत ही कम अवेयरनेस है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाती है किसी भी एक जगह पर, तो वो हम चेंज कर रहे हैं यूजिंग Machanex. एंड सेकेंड इज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर हायरिंग द ऑपरेटर्स एट द साइट. एक तो साइट की कंडीशंस में भी इश्यूज रहते हैं, दूसरा स्किल मैन पावर का भी बहुत ज़रूरत है इंडिया को. जैसे कि आप जानते होंगे इंडिया में अभी तक 70 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं और ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ तक पहुंच जाएगा आने वाले 10 सालों में. थैंक यू. So I would now request Tiwari ji, please introduce yourself, your background a little of this industry. नमस्कार गुजरात वासियों और आए हुए सभी अटेंडेंट्स, केम छो? मजामा. मेरा नाम श्याम तिवारी है और इंडिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, रोड, बिल्डिंग, पावर, मेट्रो, ट्रांसमिशन, इसका हम रियल टाइम ब्रॉडकास्टर हैं. इंडिया का फर्स्ट कंपनी जो NHI किस कंपनी को क्या काम दे रहा है, PWD किस कंपनी को क्या काम दे रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किस कॉन्ट्रैक्टर को क्या काम मिला, उसका हम रियल टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं. जस्ट लाइक आज जैसे पाकिस्तान में वार हो रहा है तो हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं उसका. एंड माय प्रीवियस एक्सपीरियंस वाज आई एम 17 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. मैं एक्स एम्प्लॉई एपको, एरा, सुप्रीम ग्रुप एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हूँ. एंड माई कंपनी नेम इज द सब इंफ्रा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव. थैंक यू सर. Thank you so much for this introduction. I'm sure we'll get to learn a lot of things about the industry which we might have missed through our journey from these two fine gentlemen on the stage. Thank you so much for the introduction. So let's get started. जो construction equipment industry है, I mean it starts from the bigger machines like large excavators to the smallest machine like a cutting bending machine. ये दोनों machines का जो range है, ये कैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और इंफ्रा इंडस्ट्री को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें अपनी रोशनी. निपुन, आई कैन स्टार्ट विद यू. जैसे कि हम बात करते हैं अभी इंडिया में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 70-75,000 करोड़ का है. बट आज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ $40 ट्रिलियन इकोनॉमी. टिल 2047 दिस मार्केट विल डबल. अप्रॉक्सीमेटली ये मार्केट 1,40,000 करोड़ का हो जाएगा. तो मतलब इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है. अगर हम ग्रोथ रेट्स की बात करें तो इक्विपमेंट इंडस्ट्री 18% के केगर से ग्रो कर सकती है, जो कि प्रोजेक्ट लाइन नंबर्स हैं. अगर इक्विपमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसका मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है.
आपने भारतमाला प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, तो गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा पुश है रिगार्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. सो आई थिंक द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आर द की ड्राइवर इन दिस इंडस्ट्री. थैंक यू. वंडरफुल वंडरफुल. आई गॉट योर पॉइंट. तिवारी जी, आपके राय इस बारे में? देखिए, हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है आज की डेट पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक तरफ बूस्ट कर रहे हैं, आज आप गुजरात के अंदर देखिए लगभग 46 तो हाईवेज बन रहे हैं. दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे बगल से निकल रहा है. मेट्रो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आपके गुजरात के अंदर है. अडानी का पोर्ट आपके गुजरात के अंदर है. आप गुजरात को देखो तो इंडिया का कितना बड़ा जीडीपी के ग्रोथ में हम लोग एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी करने वाले द बेस्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अपनी इंडस्ट्री लीडर्स को कि एक हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है कि जो कक्षा 8 पास को भी 4 साल के एक्सपीरियंस में 45,000 की सर्विस देती है. आई लाइक पीपल हु आर वर्क एज ए ऑपरेटर हैं. अगर वो 8 और 10 पास है तो आज वो 45,000 रुपये की सैलरी लेता है एक्सकेवेटर को ऑपरेट करने का. मतलब कोई अनपढ़ भी है ना और अच्छा स्किल से तो 40-45,000 रुपये की इंडस्ट्री ये बना के हमको देती है. जिस हिसाब से ग्रोथ हमारा बढ़ रहा है, नो डाउट हमें ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ना है. अभी पिछले महीने का मैं रिकॉर्ड आपको निपुण बताऊं, मैंने 39,000 टेंडर अवार्ड हुए पिछले महीने के. ये एक फिगर बता रहा हूँ आपको, जिसमें से 12,000 रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर से. तो दिस इज अ बिग नंबर और उसके लिए हमें आगे बढ़ना है. और आगे बढ़ने के साथ साथ हमें इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ में बहुत चीज़ों का हमें डिस्कस करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, हाउ टू हायर ए मैन पावर के बारे में, स्किल्स के बारे में. मशीनें बहुत हैं लेकिन स्किल्ड की अभी बहुत कमी है. सो मेरा विजन यही है कि हम लोग आगे बढ़ें. हमारे निपुण भाई ने कुछ प्लेटफॉर्म बनाए, आगे बढ़ते हैं. नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है आज की डेट में. यंग माइंडसेट चाहिए. हमें भी अगला टेस्ला बनना है. बिल्कुल जी, बिल्कुल. ये आपने जो पॉइंट रेज किया, मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे था कि बड़ी मशीन के, एक्सकेवेटर्स के और बड़े बैकहो लोडर्स के तो आपको ऑपरेटर्स फिर भी ट्रेन मिल जाते हैं. क्या ये कहीं गैप है? छोटे इक्विपमेंट्स को चलाने वाले ऑपरेटर्स क्या ट्रेन मिल नहीं पाते हैं या ट्रेनिंग नहीं हो पाती है उनकी? इसके बारे में अगर आप दोनों की कोई राय हो तो. देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि जो कि जितने भी ITI इंस्टीट्यूट्स हैं, दैट इज़ द वे टू स्टेप फॉरवर्ड. हमें सबसे पहले जाके यहाँ पर अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर आप नंबर्स की बात करें तो 16% ऑफ GDP है और ये नंबर बढ़ेगा ही. जैसे जैसे GDP बढ़ेगी तो 16% इक्वेट्स इंडस्ट्री बढ़ रही है. तो हमें ITIs के पास जाकर वहाँ पर ये अवेयरनेस करना पड़ेगा कि आप चाहे वो छोटा इक्विपमेंट हो या बड़ा इक्विपमेंट, ये एक इंडस्ट्री स्किल्स, जैसे कि तिवारी सर ने बताया कि ये स्किल्स जिसके पास हैं, भले ही आपके पास इतना एजुकेशन नहीं है बट स्किल्स हैं आपके पास, तो आप ये ऐड कर सकते हैं. अगर अपना स्किल्स इंप्रूव करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे रिगार्डेड टू स्मॉल मशीनरी एंड न्यू बिगर मशीनरी बोथ. बहुत सारी कंपनीज बिगर मशीनरी में तो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं बट स्मॉल इक्विपमेंट्स में इतना अभी अवेयरनेस नहीं है, जो कि इम्प्रूव हो सकता है. अगर ये इम्प्रूव होता है तो स्किल्ड मैन पावर जल्दी जनरेट होगा और साइट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इजीली फुलफिल हो जाएंगी. तो निपुण जी, देखिए, मैं एक अली बाबा के जो फाउंडर थे जैकमा, उनका बड़ा एक अच्छा कथन था कि अगर जिंदगी में सोचना है ना, कुछ बड़ा करना है ना, तो छोटी कंपनी में शुरू करो. मेरी बात थोड़ी इंडस्ट्री के लोगों को प्लस माइनस लगती है क्योंकि मैं रियलिटी बोलता हूँ. आज की डेट पे ना किसी से बोलो कि यार ट्रैक्टर चलाना सीखो, तो वो ट्रैक्टर में एक्चुअल में स्कूल में भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि अंकुर जी कि आप पढ़ाई करो, आपको डायरेक्ट फ्लाइट चलाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर हम ये बीज ना ग्राउंड से डालते हैं कि बेटा अगर तुमको गांव के हो
और आपको सबसे पहले अगर एक्सीवेटर चलाना है ना, तो एक्सीवेटर से पहले ट्रैक्टर चलाना एक बार तुम सीख लो। अभी क्या होता है कि जब हम किसी ऑपरेटर को बोलते हैं कि बेटा तुमको ये चीज़ सीखना चाहिए, तो बोलता है इसमें कुछ मिलेगा नहीं, और रियल में मिलता भी नहीं। और वो एक्सीवेटर ऑपरेटर छोटी कंपनी में काम नहीं करना चाहता है। मैं बोलूँ कि RBIL में काम करोगे, हाँ हाँ करेंगे, और बोलेंगे राम भरोसे इंफ्रास्ट्रक्चर में करोगे, नहीं करेंगे। मतलब RBIL बोलेंगे तो करेगा, बोलेंगे भैया एक छोटा सी मुहावरा सुनाता हूँ, छोटा बढ़ई बढ़ई और बड़ा बढ़ई टाटा, छोटा बढ़ई बढ़ई और बड़ा बढ़ई टाटा, और छोटा मोची मोची बड़ा मोची बाटा। तो क्या है कि आदमी, हमारे ऑपरेटर भाई भी ना, उनको एक बात बतानी कि कम से कम 2 साल उस छोटी कंपनी में रहकर प्लम्बिंग से लेकर आपको हर चीज सीखने को मिलने वाली है। तो जहां मिले सीख लो। अगर ये रहेगा ना तो आप बड़े में जा सकते हो। हाँ, अब आप लोग ये बोलोगे कि तिवारी जी आप लोग ये मंच में कर रहे हो और आदमी तो 4 हैं। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। जब G20 की मीटिंग होती है तो उसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ही होते हैं और उनके सेक्रेटरी होते हैं। तो लकली आज वही है कि ये बहुत अच्छा ट्रॉपिक है और सारे राष्ट्राध्यक्ष के सेक्रेटरी और उनके मैनेजमेंट बैठे हैं। तो आप लोगों को ये सोचना है कि मैं जहां भी रहूं, चाहे वो एक मशीन हो, मुझे दिल से काम करना है और सीखना है। मालिक कभी नहीं सिखाने वाला है। आपको रील में सीखिए, आप इस तरह के प्रोग्राम में छुट्टी लेके आना है, आइए। यहाँ आओगे 4 चीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर कोई मेरे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, उनको जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो जरूर भेजिए। नहीं सीखे तो ओरिंग क्या होती वो सीख जाएगा कि ओरिंग होती कैसी है। तो मेरा कहना मतलब कि स्किल बढ़ाना है ना, तो ये मत देखो, छोटे से शुरू करो, बड़े तक आप पहुंचोगे। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया है भाई, रात में कुछ होता है, सुबह कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कौन किसमें ऑपरेटर, कौन मालिक बनने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आपके जो आपने दिया मुहावरा टाटा और बाटा वाला, ये मैं लिख के लेके जाऊंगा आपसे आगे सुनाने के लिए। धन्यवाद। अब इसके बाद में एक बहुत जो मुद्दा है जो सब कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के साथ आता है कि मशीन तो लेनी है प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो खरीदनी है या वो किराए पे लेनी है। ये एक टॉपिक है जो कि हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी इससे गुजरती है। तो उसके बारे में क्या आज की डेट में रेंटल के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे IT टेक्नोलॉजी उसको एनेबल कर रहा है कि रेंट पे आप ले सकते हैं, कैसे आप खरीदने का जो प्रक्रिया है वो क्या प्रोक्योरमेंट है, कैसे वो प्रक्रिया चेंज हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सबको। लेकिन आप स्टार्ट करें। श्योर। जैसे कि आप जानते होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द बिगर प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स पसंद करते हैं कि जो फ्लीट उनके पास है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लीट अगर है तो उसको मैन पावर भी चाहिए मैनेज करने के लिए, तो और अपफ्रंट कॉस्ट भी होता है इक्विपमेंट खरीदने का। तो वही चाहते हैं कि जब तक मेरा प्रोजेक्ट लॉजिस्टिकली, एग्जाम्पल मैं चेन्नई में प्रोजेक्ट करके आया, मेरे पास 5 मशीन थी, 5 एक्सकेवेटर थे। अब मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना है मुंबई में, रेल प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो मैं जो कॉस्ट दूंगा चेन्नई से लेके मुंबई तक ले जाने का इक्विपमेंट को, वो बहुत ही ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिकली वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नियरेस्ट रेंटल प्रोवाइडर को ढूंढूंगा। जैसे कि हमने भी एक प्लेटफॉर्म जो बिल्ड किया है मचानिक्स, यहाँ पर आपको सारे रेंटल प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, उनका टेंटेटिव रेट भी मिल जाएंगे, तो इजीली आप फिगर आउट भी कर सकते हैं। तो वो रेंटल प्रोवाइडर को ढूंढेंगे, उनके साथ टर्म्स नेगोशिएट करेंगे, और रेंटिंग अ मशीन इज लेस ऑफ अ पेन, क्योंकि आजकल बहुत सारे रेंटल प्लेयर्स साथ में ऑपरेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ गोइंग मच मोर फीजिबल। जैसे कि मार्केट बढ़ रहा है और मशीन का ओनिंग कॉस्ट तो हाई है, डेफिनेटली है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, बट रेंटिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं उनको फीजिबल हो जाता है, ऑपरेशनली भी और फाइनेंशियली भी। थैंक यू निपुण। देखिए, एक जो सर ने बोला अंकित जी ने कि मशीन नई लेना चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए, और लेने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। देखिए, मैं खड़े तो बोलता हूँ थोड़ा। देखिए क्या होता है लाइफ में, जब आदमी को प्रोक्योरमेंट कब करना चाहिए,
देखिए कभी कभी क्या होता है, एक हमारे सिनेरियो में होता है कैपेक्स। कैपेक्स किसी को पता है क्या कैपेक्स क्या होता है? मतलब जब आपको नया प्रोजेक्ट मिला 15 करोड़ रुपए का, निपुण जी मार्केट का सिनेरियो प्रैक्टिकली बताता हूं, और एक परचेज मैनेजर होने के नाते हम क्या सोचते हैं वो भी बताते हैं। एक वाटर का प्रोजेक्ट मिला हमें 15 करोड़ रुपए का। अब 15 करोड़ के रुपए में एक एक्सीवेटर कितने का आता है? 65 लाख रुपए का। 65 लाख के, मतलब कुल मिला के अगर उसको काम शुरू करना है तो 3 करोड़ की मशीन डालनी है उसको। मतलब टोटल 15 करोड़ का 3% गया तो कितने परसेंट चला गया उसका कैपेक्स में? 3 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली 5-1% जितना भी गया। अब क्या हुआ, हमारे को क्या चाहिए एज ए परचेज में, कि जब हमारे को प्रोजेक्ट मिले और भाई साहब के पास अगर 2 एक्सवेटर हैं, अगर ये समय पे ले आए हमारे पास, बराबर भाई साहब, कि सर तिवारी जी आपकी कंपनी को 15 करोड़ का वाटर का प्रोजेक्ट मिला, मेरे पास 2 मशीन से मैं आपको देना चाहता हूँ। इसी तरह मैडम के पास मान लो लोडिंग मशीन होगा, किसी के पास बोरिंग मशीन होगा, तो ये हम एक मुट्ठी पे काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि अब हमारे को जो मशीन चाहिए उसका वेंडर नहीं मिलता। वेंडर मिलता तो इतनी पुरानी मशीन लेके आएगा कि वो आए दिन बिगड़ी खड़ी रहेगी। बिल्कुल। अब क्या होता है, आदमी सोचता है कि यार मैं पुरानी मशीन ले लूं तो मैं क्या करूंगा, वो फिर नई मशीन डालता है, और रियल में जो उसका फंडेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि 15 करोड़ के प्रोजेक्ट में 3 करोड़ की मशीन खरीदना उसकी मजबूरी है। अब वो क्या करता है, 10% जो मोबिलाइजेशन मिला 1.5 करोड़ तो वहां से ले आता है, उसके बाद बीजी बनाना है, पीबीजी बनाना है, साइट एस्टेब्लिश करना, 2 करोड़ उधर खत्म। अब वो आदमी सफर करता है, क्यों, मशीन तो नहीं लाई। और मार्केट का जो रेट है हाईवे के अंदर इस समय 35% एवरेज है। द टेंडर कॉस्ट विल बी 300 करोड़ और 30% माइनस ये प्रोजेक्ट ले रहा है, क्यों, खाली वो कैपेक्स को मेंटेन कर ले। तो हमारे में अंकुर जी क्या प्रॉब्लम है, एक ऐसा कोई मैकेनिज्म चाहिए कि जैसे कोई प्रोजेक्ट आए, चलो इंफॉर्मेशन हमसे मिल जाए, किसी को मशीन खरीदना है तो पहले सोचे कि रेंट पे मिल जाए और अच्छी कंडीशन की कैसे मिले, ये इंपॉर्टेंट है। अब रह गई बात ऑपरेटर की बात, ऑपरेटर देखिए 15,000 का भी है, 25,000 का भी है, मालिक लोग उसको पैसा भी नहीं देते कि वो सोच सके कुछ अच्छा। हाँ, तो क्या करते हैं, वो मशीन तो नहीं ले आते हैं और ऑपरेटर 10 रुपया कम देना पड़े इसलिए सस्ता ले आते हैं, वो 1 महीने के अंदर तो बुश तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि मशीन के साथ हम कहते हैं कि दोस्ती के साथ में ना, मतलब मेरे बराबर नहीं बैठता, वो एक चुटकुला है कि अच्छे दोस्त मिले ना तो उसके दोस्ती भी अच्छे मिले। हाँ, तो हमें अच्छी मशीन भी लेना है और अच्छे ऑपरेटर भी चाहिए, तो हमें कोई रेटिंग चाहिए कि ये ऑपरेटर वाकई में अच्छा है। तो मशीन कोई नहीं खरीद, आज के डेट में कोई मशीन नहीं खरीदना चाहता, बशर्ते क्या उसको मिल जाए, सही समय पे चीज मिले, सही मिल जाए और सही मॉडल भी मिल जाए। आप ढूंढ तो वही रहे हो जो आपकी गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन सही मॉडल नहीं मिला ना तो बेकार है वो। हाँ, थैंक यू। अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों मशीन खरीदनी चाहिए नहीं। तो ये मैंने देखा है मचानेक्स के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आती हैं और रेंटल करने के लिए मशीन की, तो मैं कई बार सोचता था ये चीज कि क्यों ऐसा है, जब नई मशीनें मिल रही है रेंट पे क्यों लेते हैं। तो आज आपने वो मेरी बात डाउट क्लियर कर दिया मेरा। उनके पास में सही समय पे नहीं आता। देखो टेंडर अवार्ड से, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी, टेंडर अवार्ड से 30 दिन के अंदर LOI मिलता है, मशीन को नई मशीन आने में लगता है 45 दिन और 15 दिन खा जाता है बैंक। बिल्कुल सही। इतने देर में उसको मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाए। तो निपुण, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो ये प्रॉब्लम्स बताई तिवारी जी ने, आपका प्लेटफॉर्म इन सारी चीजों को तो एड्रेस कर रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा आप इस बारे में बताएंगे। हाँ जी, बेसिकली हमारे प्लेटफॉर्म पर आप न्यू मशीनरी के बारे में सारी टेक्निकल जानकारी पा सकते हैं। आप मल्टीपल ब्रांड्स को, लेट्स से आप बैकहो लोडर खरीदने आए हैं तो आप मल्टीपल ब्रांड्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनको टेक्निकली कंपेयर कर सकते हैं, और एक सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन में आपको एक्सेल शीट भी डाउनलोड करने को मिल जाएगी। ये आपने इंटेंट ट्रेस किया, अब आप चाहते हैं कि आपके नियरेस्ट डीलरशिप कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, या कितनी वारंटीज होगी,
मशीन में कौन सा इंजन लगा है, किस टाइप का हाइड्रोलिक ऑयल डलेगा, सर्विस शेड्यूल कब आएगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इजीली एट मचानिक्स मिल सकता है। सेकेंड, अगर आप रेंट करना चाहते हैं मशीन को, जैसे कि सर ने बताया कि रेंटल इज मोर फीजिबल हो जाता है आजकल के समय में, तो रेंटल के लिए सारे प्रोवाइडर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हैं इजीली, आप उनके रेट भी कंपेयर कर सकते हैं, प्लस उनसे ऑफर्स भी मंगा सकते हैं। थर्ड, हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स हमारे पास 13,000 से ज़्यादा सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म पर अभी रजिस्टर्ड हैं, और ये नंबर डेफिनेटली बढ़ रहा है। 13,000 तो शायद 6 महीने में ही हायर हो जाते होंगे, आई बिलीव सो, दिस इज द नंबर्स। ऑपरेटर्स पे आते हैं निपुण। तो हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, ताकि ये मीट से लोगों को अवेयरनेस बढ़े कि आप आएँ और देखें। फोर्थ इज सर्विसेज, जो कौन सर्विस प्रोवाइडर है उस रीजन में, कि मेरा मशीन ब्रेक डाउन हुआ तो कहाँ से मैं सर्विस कराऊंगा, तो वो सब आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमारे मिलेगा। थैंक यू। गुड। तो मैंने आपको रोका बीच में इसलिए किया, मेरा अगला क्वेश्चन कहाँ गए थे वो ऑपरेटर के ऊपर है। पर इससे पहले हमने ये देखा कि मशीन की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत फास्ट बढ़ रही है। मशीन रेंटल ली जाए या मशीन खरीदी जाए, इसके ऊपर हमने चर्चा करी। पर इस मशीन को चलाएगा कौन? इस मशीन को जो ऑपरेटर चलाएगा, जिसके कंधों पे ये पूरी इंडस्ट्री टिक गई है आज की डेट में, क्योंकि सारा ऑटोमेटेड हो गया है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि ऑपरेटर्स जो एक ह्यूमन इंटरफेस है इंडस्ट्री का, उसकी करंट सिनेरियो, करंट रिक्वायरमेंट थोड़ा सा आप दोनों बताएं। निपुण, आप स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे हम आईसीमा के नंबर्स, आईसीमा मीन्स इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की बात करें तो उनके डेटा के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख नई मशीन बिकती हैं एक साल में, और हम यूज मशीन का मार्केट का बात करें तो 3 गुना होगा, तो 4-1 लाख मशीन बिक रही हैं। तो अब 4 लाख मशीन बिक रही हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख ऑपरेटर्स तो आपको हर साल चाहिए। कुछ लोग इंडस्ट्री में हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, तो ऑपरेटर्स का इनबाउंड होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे जो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ट्रेनिंग देते हैं, जब भी मशीन बेची जाती है तो नॉमिनेट करते हैं लोगों को कि आप आइए ट्रेनिंग लीजिए और हायर हो, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा इजीली। ये इंडस्ट्री हाई पेइंग है, अगर आप देखें तो जैसे नई एज ऑफ द मशीन्स आ रहा है, अब रोड प्रोजेक्ट्स में मिलिंग मशीन्स बहुत यूज होती हैं, तो मिलिंग मशीन के जो ऑपरेटर्स हैं उनका सैलरीज 1.5 लाख के अप्रॉक्स भी जाता है। 3 से 4 साल एक्सपीरियंस मिलिंग मशीन के ऑपरेटर की सैलरी इतनी है, तो मतलब जैसे जैसे मशीन जितनी हाईटेक होती जा रही है, द डिमांड फॉर मैन पावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और इनका जो सैलरीज है बहुत ही डिसेंट नंबर्स में मिलती है अगर आप एक स्किल्ड नीश ऑपरेटर हैं तो। तिवारी जी, आपके राइट के मार्केट में आज भी मैं आया तो मैं 4-5 मशीनें देखी, जो पिछले महीने से मैंने अब अपग्रेडेशन देखा, तो डे बाय डे इंडस्ट्री चेंज हो रही है। वी आर द लकी कि हम ये बदलते हुए समाज को और बदलते हुए टेक्नोलॉजी को देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं इंजीनियर्स को भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो इतना सोच पा रहे हैं। हाँ, देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, माननीय श्री नितिन गडकरी जी का मेरे पास वीडियो भी है। उन्होंने बोला कि 22 लाख ऑपरेटर की कमी है, मतलब ड्राइवर की बात की है, तो इसकी 10 गुना तो मशीनें हैं हमारे पास। तो मोटा मोटा अगर करें ना कि आज की डेट में 1 करोड़ ऑपरेटर और ड्राइवर की कमी तो मुझे हिसाब से है। रही बात की टेक्नोलॉजी के साथ हमें काम करने की, तो निपुण जी मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा बेटा ना मेरे से फास्ट एप्पल फोन चला लेता है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। बहुत लोग पिताजी बैठे होंगे, जरा हाथ उठाइए, जरा सा देखे जरा कौन कौन पिताजी हैं। बाबूजी, आपका बच्चा आपसे तेज चला लेता है ना मोबाइल? हाँ, करेक्ट। आज उनको जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। आज आप YouTube पे देखो कि मशीन कैसे चलाते हैं, कोई भी आदमी प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनाता, ये मेरी कमी है। कमी कैसे है? मास्टर तो वीडियो बना नहीं सकते, हमारे जो ऑपरेटर भाई है ना वो कह लेते, जैसे हमारे पिताजी कढ़े हैं, पापा आर्मी में सप्लाई कोर में थे, गोला कौन सा जाना है उनको पता है, चलाना कैसे उनको नहीं पता, क्योंकि उनको बिजनेस सिखाया ही नहीं गया।
तो आज की डेट पे क्या है, 3 चीजों को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि कोई प्रोफेशनल आदमी प्रॉपर वीडियो बनाए और समझाने की कोशिश करे। क्योंकि देखो, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर की लैंग्वेज बोलता है, सर ये लीवर में हाइड्रोलिक होता है, पेनेटिक्स होता है, ये होता है, वो होता है, वो ऑपरेटर को समझ में ना आवे, वो ऑपरेटर को समझ, अब उससे पूछे मैट्रिक स्पेलिंग क्या होती है तो एन से ही शुरू करेगा वो। तो पहली बात प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे ऑपरेटर को सिखाने की जरूरत है ना, ऐसा आदमी हो जिसने 15 साल पाना लेके घूमा हो, मतलब उसने सेफ्टी सूट पहना और प्रॉपर वीडियो बनाए तो ये सीख जाए। बहुत टैलेंट है, टैलेंट बहुत है। तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस की नहीं है, हमें आपको सीखने में जरूरत लगेगा, उनको नहीं लगेगा क्योंकि वो टेक सेवी हैं। सही बात। मेरा लड़का, मैं अपने मेरे दोस्त, मेरे लड़के के जो दोस्त हैं वो ड्रोन चला लेते, मैं आज तक नहीं चला पाया। 1.5 लाख का ड्रोन मेरा रखा रहता है। आई एम डिपेंड अपॉन माय सन, कैसे चलाना है। ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन की बात करूं, हाइड्रोलिक सिस्टम, वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो हमें आज सिर्फ इतना है कि हमें YouTube के ऊपर अच्छे इंजीनियर्स निकलो और टेक्निकल बात करो। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यार कि हम इंजीनियर हैं, थोड़ी देर के लिए मानो कि मैं इंडस्ट्री के लिए करूंगा और मेरा वीडियो आने वाले 20 सालों तक ये स्टेचू बन के खड़ा रहेगा, जैसे गुजरात में पटेल साहब का स्टेचू, ऐसा आपका वीडियो रहेगा। 10 लोगों को खाना मिलेगा, परिवार पलेगा, जिंदगी भर याद रखेगा मैंने कि निपुण का वीडियो देखकर। ऐसा टैलेंट की हमारे कोई कमी नहीं है। आप बोलो तो आपका लड़का सीख जाएगा कि सर ऑटोमेशन कैसे करना, चला ना पाए बात अलग की है। बिल्कुल जी। मल्टीटास्किंग कहते हैं मेन की पोर परफॉर्मेंस है, वुमेन कैन डू बेटर मल्टीटास्किंग। तो दैट इज व्हाई इस काम पे गया तो ये वाला काम रुक गया। बट नॉनदलेस जो ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर्स को सिखाने की जरूरत है आज की डेट में, ताकि और वेल ट्रेंड ऑपरेटर्स हमारी वर्कफोर्स में ज्वाइन कर सके। ये हो गया एक ऑपरेटर से हम क्या चाहते हैं, एक इंडस्ट्री क्या चाहती है, पर ऑपरेटर क्या चाहता है, उसको क्या मिलना चाहिए, इसके बारे में जो आप लोगों के मिलने से, ऑपरेटर्स के साथ मिलने से जो राय मिली आपको, जो उनकी इंफॉर्मेशन मिली, थोड़ा सा वो शेयर करें ताकि हमें पता चले कि ऑपरेटर्स को भी कुछ चाहिए, वो क्या है। तिवारी जी आप शुरू करें। देखिए, आज की डेट पे मैं बैठा हूँ यूपी से, नितिन जी बैठे हैं दिल्ली से। पहली बात तो हमें ऑपरेटर को देना क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। लाइफ में ना सबसे पहले हमें देना है जो सामाजिक उसकी प्रॉब्लम्स है, एक अच्छा अमाउंट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट और रॉन्ग? हाँ, जब तक आपका पेट भूखा है तब तक आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट? हमें सबसे पहले सीखना है क्या उसकी समाज में जितना हम सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि मैं 65 करोड़ की मशीन खरीद सकता, सॉरी 65 लाख की मशीन खरीद सकता हूं, तो क्या उसकी जिंदगी में 4-5 हजार रुपए ज्यादा देकर उसकी मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसकी पेट की भूख को मिटा पाऊंगा क्या? आज की डेट पे हर ऑपरेटर बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए तैयार है। वी आर वर्किंग विद द बीआरओ। हम सियाचिन में काम करते हैं, हम लद्दाख में काम करते हैं, लोगों को देखते हैं क्या कमी है उसके अंदर। सबसे पहले उसको हमें अच्छी सैलरी देना है, लेकिन ये भी है कि हम कमाएंगे तो देंगे भैया। हाँ, हम चैरिटी फंड तो है नहीं, इसमें कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है नहीं। पहला, अच्छा सैलरी देना। दूसरी चीज, हमें क्या देने की जरूरत है। निपुण भाई, आप ये काम अच्छा कर सकते हो क्योंकि आपके पास 13,000 पीपल्स है, मुझे आपने बताया। देखिए, आज की डेट पे किसी को गुजरात का आदमी है, क्या वो उत्तर प्रदेश में काम करना पसंद करेगा क्या? कितने लोग सहमत हैं? अगर कोई आदमी गुजरात का है, कच्छ का है, और उसको बोलो लखनऊ में आपको हाइड्रोलिक मशीन चलाना है, तो क्या पसंद करेगा क्या? नहीं पसंद करेगा। ये हमारी इंडस्ट्री की जरूरत है। हम अपने गुजराती भाई को गुजरात के अंदर मशीन आए तो उसको हम ऐसा प्रिपेयर करें कि गुजरात से पॉसिबल करके नौकरी पा जाए, उसकी जिंदगी का 50% प्रॉब्लम सॉल्व। उसकी भी बीवी आने वाली है, उसका भी परिवार है, उसका भी समाज है, उसकी भी अपनी जरूरत है।
लेकिन वो 15 से 20 हजार की नौकरी भारत के वर्ल्ड के सबसे पहले गांव में काम करने के लिए मजबूरी है। उसका कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए कि मैंने इस स्टेट के अंदर, जैसे हम काम करते हैं कि पहले कि गुजरात में ये वाटर का पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आया और हरियाणा की कंपनी को मिला, तो लोग हरियाणा की कंपनी से कोऑर्डिनेट कर बात करें कि सर मैं गुजरात का हूं, मैंने पाइपलाइन का काम किया है, मैंने नर्मदा पाइपलाइन में काम किया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो मैं आपका 20,000 की जगह 18,000 भी करने को तैयार हूं। अच्छा बोलो, किसी गुजराती को गुजरात में 20,000 रुपया मिले और बाहर 23,000 मिले तो कौन सा पसंद करेगा? 23,000 पसंद करेगा 20,000 वाला? 20,000। तो पहले क्या किया कि एक तो ये बर्डन कम हुआ, अगला ऑपरेटर को धक्का मारते हैं, हरियाणा वाले को बोलो कि आपको तमिलनाडु में, जब सर जी मैं तो 35,000 लूंगा। अच्छा, तमिलनाडु वाला ढूंढ रहा है काम, वो बेचारा कह रहा छोड़ो सर मेरे को तो डोसा इडली खा के मैं 20 से 25 में कर लूंगा। ये गैप है। दूसरा गैप क्या? थोड़ा सैलरी ज्यादा दे दो, तो जो आपको 35 दे रहा है यहाँ पे 30 दे दो, उसका प्रॉब्लम। और ऑपरेटर को कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कर रहा है तो एक इंश्योरेंस करा दो, मेडिकल के खर्चा ले लो, उसको कुछ नहीं चाहिए साहब। आप बड़े होटल में जाओ तो टिप दोगे तो बड़े प्यार से रख लेता है, लेकिन छोटे ट्रेडी में खाओ और 15 रुपया ज्यादा दे दो ना, तो बोलते हैं सर 35 का वो 15 रुपया। मतलब उनको ज्यादा एक्सपेक्ट, उनको सिर्फ दो चीज, उनको सेफ्टी मिल जाए, इंश्योरेंस मिल जाए, और उसको घर के पास। समाज की जिम्मेदारी हमारी है, समाज फर्स्ट है। समाज खुश रहेगा तो काम खुद करेगा, थोड़ा नेतागिरी नहीं करे बस कि लोकल है तो मैं। तो निपुण, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या क्या ऐसी सर्विसेज दे पा रहे हैं ऑपरेटर्स को? जैसे तिवारी जी ने बताया कि उसको नियरेस्ट जॉब मिल जाए, सेकंड उसका पेट भर जाए, मतलब उसको सैलरी, डिसेंट सैलरी मिल जाए, तो सबको मिलती है, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी, कि जहाँ पर भी वो साइट पर है उसको बेसिक पीपीई किट मिले, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। सेकंड, सारी जो भी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उस मशीन्स के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो ताकि वो सेफ्टी लिमिट्स एक्सीड ना करें। थर्ड, एक बेसिक ट्रेनिंग ऑफ द मशीन उसे मिल जाए। फोर्थ, हम बात करते हैं उसका एकोमोडेशन और फूडिंग बहुत जरूरी है, उसको खाना मिले साइट पर रोज टाइमली, और उसको रहने की जगह मिले, और वो ऐसी जगह हो जो सबके लिए रहने लायक हो। क्योंकि हम बहुत सारे ऑपरेटर से मिलने के बाद हमें पता चला कि सैलरी है बट वहाँ पे रहने की सुविधा ही नहीं है, ना गैस है, ना गैस है, ना खाने का सामान है, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, दिक्कत हो जाती है उनको वहाँ पर। तो उनके लिए फूड मिले, डिसेंट एकोमोडेशन मिले, और सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्म्स के हिसाब से मिले। अगर उसका स्किल 10 साल का है तो वो डेफिनेटली 35,000 रुपये तो डिजर्व करता है, और अगर एक फ्रेशर है तो उसको डिसेंट सैलरी, उसके साथ में मेडिकल सुविधाएं। सर ने बोला, मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जब भी हम ऑपरेटर प्लेस कराने की कोशिश करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो उनका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 1 साल का, वो कवर हम लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है कि वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्ड होने चाहिए। कोई भी साइट पर हादसा होता है, हो ही जाता है, आप कितना भी सेफ्टी का ध्यान रखें, बट हादसे होते हैं, हम नहीं चाहेंगे ना हो, बट होते हैं, तो उसका कवर जो है वो ताकि रहे और वो उस चीज़ को अवेल कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू निपुण। अभी तक हमने ये टच ऑन किया कि इक्विपमेंट्स किस टाइप के हमारे पास हैं, हैवी इक्विपमेंट्स हैं, स्मॉलर कटिंग बेंडिंग मशीन आती हैं, उनका रेंटल है या बाइंग है, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, ऑपरेटर्स हमने किस तरीके से हम ऑपरेटर्स को लेवरेज कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। पर सबसे क्रिटिकल पार्ट, एक मशीन की हेल्थ और एक मशीन की मेंटेनेंस, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अगर हम दो लाइन अगर कह सकें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं एक अपनी गलती बताता हूँ, हालांकि कोई मार्केट में गलती नहीं बताता है, मैं अपनी पर्सनल गलती बताता हूँ। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड में, और मैं बड़े चौड़े होकर बोलता था, सर मैंने फिल्टर सस्ता खरीदा है,
अच्छा, वो देखने में फिल्टर एक ही तरीके लगता है। जो फिल्टर होते हैं ना, वो सबके नाम, नंबर, पार्ट नंबर सब कुछ ठीक है। चावड़ी, वो जो दिल्ली की कौन सी मार्केट है, कश्मीरी गेट वाली, कश्मीरी गेट। अब मैंने क्या किया कि एक सर फिल्टर खरीद लिया। वो फिल्टर था 1200 का और कंपनी का फिल्टर था 3200 का। मैं चौड़े के घूम रहा था, देखो सर आपने तो 1200 वाला नहीं, मैं तो 3200 वाला 1200 पे खरीद लाया। अब जिस कंपनी में था वो बड़ा उनके साथ पर्सनल रिलेशन था, उन्होंने मेरे को 2 कंटाप मारा। इसलिए मारा कि जिंदगी भर याद रखने के लिए, ऐसा नहीं मारा। और गलती थी मार खाने के लिए, क्योंकि हम उस दौर के हैं जब मार खा के लोग पढ़ते थे मार खा के, और पढ़ते भी थे। तो हमें ये नहीं पता था कि हमें फिल्टर में जो 1200 में है उसमें पेपर कम लपेटे होते हैं। ऐसे ही होता है ना कि नंबर ऑफ रोल कम थे, और हम नंबर ऑफ रोल कम था, तो उसके अंदर डीजल सिर्फ इधर से निकलता था, उधर से चला जाता था। और मालिक को, क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए थे, जानते हो आपको मालिक साहब को, तो बोले तिवारी जी ये गधापचीसी बंद करो, यू कैन हायर। मतलब आपको प्रोडक्ट जो खरीदना है ना, या तो पता लगाओ कि ओईएम कौन है इसका। अभी मैं इसको एक क्वेश्चन अपने आप से लूंगा कि कैसे प्रोडक्ट खरीदो और सस्ता कैसे खरीदो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। तो बोले कि हमेशा फिल्टर, रिंग, पुश, ये सामान तो आप खरीदो कंपनी का, क्योंकि इंडिया में कोई भी कंपनी इस पैरामीटर का माल बनाती नहीं है। योर ओपिनियन। उन्होंने हाईलाइट किया कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो OEMs के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके सप्लायर्स भी हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग सारे सप्लायर्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स लिस्ट कर रहे हैं, प्लस जो भी उन कंपनीज प्रोडक्ट्स की मेंटेनेंस शेड्यूल्स है वो भी हम लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवेयरनेस रहे कि कम मशीन को मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए इन वारंटी तो ब्रांड डेफिनेटली टेक केयर करेगा आपकी मशीन का, बट आफ्टर वारंटी क्या होगा? आफ्टर वारंटी आपको टेक केयर करना है मशीन का फॉर लॉन्गर लाइफ ऑफ द मशीन। आज जो मशीन की लाइफ शायद 10 साल हो सकती है, वो 5 साल में खत्म हो जाती है। रीजन ये है कि सही से टेक केयर नहीं किया जाता है, सेंसर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, या रेगुलर टाइम सर्विसिंग चेकअप्स नहीं होते हैं। उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम थ्रू आवर प्लेटफॉर्म की हम अवेयरनेस दें कि आपका ये मशीन आपके पास है तो आप ये मेंटेनेंस शेड्यूल यूज कीजिए, बेस्ड ऑन द मॉडल बेस। वो चीज हम कर सकते हैं डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। कई बार कैसा होता है, नितिन गडकरी जी को मैं सुनता हूँ ना, ये कागजों में बड़ा अच्छा होता है, हाँ, हमें जरूरत है करके दिखाने की, हाँ, और पैरामीटर्स को पूरा करने की। जिस तरह जब यूएस ने मना किया कि फला देश से आप तेल ना लो, तो इधर के प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला, हमें मत सिखाओगे कहाँ से लेना, जहाँ से वादा पड़ेगा वहां से लेंगे। तो आफ्टर सेल्स सर्विस, इफ यू विल अरेंज द एनी प्लेटफॉर्म, यू कैन टेक प्रोडक्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, तो मेनी पीपल विल परचेज। वेरी ट्रू, राइट? क्योंकि अवेयर होते, तो ये कर चुके होते, हम लोगों के स्टार्टअप की जरूरत ही ना होती। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच तिवारी जी एंड निपुण जी। ये कुछ हमने जो यहाँ पे ऑडियंस आई है उनके विजिटिंग कार्ड्स हैं, नाम है, तो आप इसमें से एक निकालें, उनको एक लकी ड्रॉ का एक गिफ्ट हम देना चाहेंगे। किसी एक को भी आप निकाल लें इसमें से। मिस्टर राकेश खोखानी, प्लीज सर, वेलकम। He's from Vibrant Infrastructure and Media Private Limited. आइए सर। Congratulations. आपने वक्त निकाला। Thank you for joining us. In fact, we can go for one more lucky draw since the audience is here. तो एक और आप इसमें से निपुण आप निकालो, कोई भी एक कार्ड बिना देंगे। Gajmin Industry Association, MS Sateshio. वेलकम सर।
इतना समय दिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात की वैसे भी मिट्टी बहुत बिजनेस वाली है और मजा आया आप लोग साथ में इंटरेक्शन करके। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कई बार कि लोग पूछना चाहते हैं और आपका क्वेश्चन सबका फायदेमंद बनेगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। आपने एक बात सर बोली थी, जस्ट थोड़ा माइक पास कर लें। आपने इसमें एक बात बोली थी ऑपरेटर की रेटिंग। हाँ जी। सो वो ऑपरेटर रेटिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? द यूजर जो उन ऑपरेटर को हायर कर रहा है या मचानेक्स उस ऑपरेटर को रेट कर रहा है? देखिए, हम जो रेटिंग सिस्टम अभी 100% नहीं है बट ऐड कर रहे हैं, वो रेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन, क्या उसका लाइसेंस है या नहीं है, सेकंड उसने एक्सपीरियंस लिया या नहीं लिया और किस टाइप की वर्क में लिया है, उसके अकॉर्डिंगली रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। वो मचानेक्स के थ्रू ही होगी। ओके, बिकॉज सर्टिफिकेशन जो भी है वो OEMs प्रोवाइड करता है Correct. उनकी ट्रेनिंग पे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी स्किल प्रोग्राम के थ्रू उनको सर्टिफिकेशन होता है। तो बस वही मुझे जानना था कि रेटिंग कैसा इसको हाँ मिल रहा है। जी। NSDC एक बॉडी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और अभी हम लोग नोएडा में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कर रहे हैं फॉर ऑपरेटर्स, फॉर सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर ऑपरेटर्स, जो कि ट्रेनिंग इज गिवन बाय एजैक्स, और ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो एजैक्स के थ्रू ही आएगा और दैट इज अक्रेडिटेड बाय NSDC। तो वो 6 दिन का प्रोग्राम होगा, 2 दिन का थ्योरी ट्रेनिंग एंड 4 दिन का प्रैक्टिकल ऑन द मशीन। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है या अभी आप मतलब ये किस तरीके से है? मचानेक्स को थोड़ा सा डिटेल करेक्ट। यूज़र के लिए कंप्लीटली फ्री है, आप सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डाउनलोड इजीली कर सकते हैं ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। कोई भी सब्सक्रिप्शन फी यहाँ पर नहीं है। जो ऑपरेटर्स है, मे बी वो इंदौर हो सकता है, यूपी हो सकता है, कहीं पे भी, तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। हाँ जी, इजीली रजिस्टर कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। एनी वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन के लिए उनका लाइसेंस, उनका ऑपरेटर सर्टिफिकेट, उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड उनका नेटिव सर्टिफिकेट जहाँ से वो हैं, और अगर उन्होंने कहीं काम किया है पहले, लेट से किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो उसका सर्टिफिकेट उनके पास होता है। तो इसमें लैंग्वेज बैरियर है, मतलब इट्स इन इंग्लिश, बिकॉज लोकल लैंग्वेज में ऑपरेटर, यू आर सेइंग, मतलब हम लोग सब जानते हैं कि ऑपरेटर का लोकल लैंग्वेजेस में भी रहते हैं, वो प्रोबेबली इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं लैंग्वेज को लेके, क्योंकि उनको रजिस्टर करना होगा ना, उनको तो कोई ऐप। हमारी टीम उसमें हेल्प करती है। हम लोगों के पास ऑलरेडी रीजनल लोग हैं। ओके, ग्रेट, जो उन्हें सर्टिफाई करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। ओके, थैंक यू। वेलकम। मेरा क्वेश्चन, आपने जब भी बताया कि पाइपलाइन गैंग जो है, जो मिक्सिंग कंक्रीट डिवीज़न का बात है पर्टिकुलर, तो उसमें जैसे ऑपरेटर रहता है मशीन का, मशीन ऑपरेट करता है पाइप जो कंक्रीट पंप चलाता है, उसके बाद 2 फिटर रहते हैं और 2 हेल्पर रहते हैं, तो 5 जन का अप्रोक्स गैंग रहता है। तो वो सारा जो भी है, मतलब वो अपना प्लेटफॉर्म में इंक्लूड है, क्योंकि ऑपरेटर के साथ ये एक पूरा टीम वर्क रहता है। और मोस्टली मार्केट में इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर आप कैलकुलेट करें ये सारे जो ऑपरेटर का जो भी रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं अवेलेबल, मिलते नहीं हैं। तो ये अपने जो भी है आपका प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी है कि क्या है? बिल्कुल, जो जैसे आप जूनियर ऑपरेटर या फिर फिटर या हेल्पर की बात कर रहे हैं, वो भी अवेलेबल रहेंगे। सारे ITIs के साथ हमारे टाई अप है, उनके थ्रू जो भी लोग फिटर्स निकलते हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इंक्लूडिंग ऑपरेटर, ये जो टीम है वो भी इस टाइप की टीम रजिस्टर्ड होती है ऑलरेडी। करेक्ट। हम ITIs जाके एनरोल करते हैं इन लोगों को। ओके, फाइन। वो यहाँ पे है या इसके और भी होगी बहुत सारी? OEM के भी प्रोडक्ट्स सारे हैं, प्लस उसके अलावा जो सप्लायर्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। बिकॉज वी आर द DGZ मैन्युफैक्चरर, जिस वजह मैं asking कि हम अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी रख सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर्विसेज, स्पेयर्स एंड ऑल द मशीनरी यू कैन लिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके। Looking forward to having this discussion in another platform, another city. Thank you. Thank you everyone. Thank you for joining us.